Hello everyone, this is Meenakshi Nirula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. At our platform, we keep on sharing with you a number of innovative strategies, wonderful pedagogies, so that you can foster competency-based education in your classes and enhance joy of learning. Education is not complete unless until it helps us develop into good human beings. So for that, values are really very important. To enhance that value-based education, to foster life skills, we are come up with health and wellness program by CBSE. For that, we all have attended, all the head of in the institutes, they have attended an orientation program today for beginning health and wellness program in the schools for classes 6 to 9th and 11th. And I'm here with you with this first theme, growing up healthy. I have already shared with you, there are total 11 themes that we will be covering. 6 months time is there, 24 themes are there. So different topics are there. So the first theme is growing up healthy. And for that, let's talk about what is there in this theme and what all things we'll be talking about. If we talk about adolescence, all the children who step into adolescence, and many of them have already stepped in when we really did not realize during this pandemic, when our children, they stepped from childhood to puberty, and really there was nobody to guide them. Everybody was busy with the laptops, with devices. Everybody was working from home. It's high time we need to talk about the challenges that they are facing. Period of rapid physical, mental, socio-emotional changes. For healthy transition to adulthood, children need to understand and manage changes within themselves as well as changing expectations from the outside world. घर में कितनी बार हम देखते हैं बच्चे जो एडोलेसेंस में स्टेप कर चुके हैं, they have been facing many challenges. कभी हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, they are talking about why this is happening to me due to hormonal imbalance, mood swings होते हैं, अपने आप को खुद बड़ा समझते हैं, बड़े कहते हैं नहीं अभी आप छोटे हो, तो always they are under stress. It is happening. It is happening at my home as well. So let us know how to deal with such kinds of challenges. This is what we will be talking about all in this module. Build skills such as critical thinking, problem solving and decision making. ये सारी skills हम वैसे भी बात करते हैं, while competency based education हम बच्चों में ये skills को enhance करेंगे, ये foster करेंगे. Manage these changes and counter myths and misconceptions associated with adolescence. बहुत सारे taboos, बहुत सारी misconceptions associated हैं adolescence period के साथ. कौन से टैबूज हैं, उनसे कैसे डील करना है, बच्चों को, पेरेंट को कैसे काउंसिल करना है, all the things we will be covering in this module. Module 1, growing up healthy. इसमें हमने क्या करना है, we will be talking about I am changing, केस स्टडी के थ्रू पढ़ाएंगे बच्चों को, फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस थ्रू केस स्टडी. इस कॉलम में मेथोडोलॉजी लिखा है एंड इस कॉलम में टॉपिक लिखा है, हमने क्या कवर करना है. अटेनिंग प्यूबर्टी, myths about growing up and other changes. Discussion will be held. The beauty that matters, case study. Skills to encounter stigmas and stereotypes during adolescence. We'll be covering these topics, right? Now, I am changing. Let's talk about the first activity in this video. I am changing. What are the learning outcomes? Describes the changes that occur during adolescence. What kind of physical changes? What kind of changes in the mood swings, the mental health that occur during adolescence? The child recognizes adolescence and the process of growing up as a positive phase. The child should accept it. Yes, this is a change. Change is the only constant in the world, right? So everything changes. We have already talked about number of changes in 6th class में changes का chapter है, 7th में भी changes का chapter है, साइंस में हम बच्चों को already पढ़ा रहे हैं, तो हम उसके साथ भी connect करके बच्चों को ये समझा सकते हैं. ठीक है, subject integration we can go ahead with that. और इसमें case studies, पहली case study क्या है, the try cleaners. 3 friends on completing their studies return to the village. They are very sad to see the lack of cleanliness in the village. They plan and divide responsibilities to improve their village, such as increasing awareness among villagers about health, hygiene, wellness, ensuring recycling, and bringing children together to clean the village.
When they approach the villagers for joining hands with them, they do not get their support. The three friends decide to take forward the work, and their actions inspire the villagers to join them. Now, points for discussion related to this case study are: which traits of the three young people make them up take responsibility for improving cleanliness in the village, even though others did not support initially. They did not get support initially, but still they continued their work. उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उनके अंदर एक पैशन था, राइट? तो आप बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि उनमें कौन से ट्रेट्स हुए, कौन से ऐसे ट्रेड्स थे जिन्होंने उनको इस चीज के लिए मोटिवेट किया कि वी हैव टू गो अहेड with whatever is there in our mind. We have to go for change. At least let me the one who will be initiating the change. दूसरों की तरफ ना देख रहे हैं, हम खुद ही शुरुआत करें एक चेंज करने की। एक छोटा सा, एक कहीं आप सबने वीडियो भी देखा होगा जिसमें कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ बारिश वारिश की वजह से, कोई पेड़ वगैरह गिर जाता है, लोग वहां पर खड़े हैं, कोई कोशिश नहीं कर रहा, दे ऑल आर वेटिंग, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, बच्चे स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, एम्बुलेंस खड़ी है, सब परेशान हो रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा आकर वो बारिश में भी अपना बैग वैग साइड पर रखकर बड़ी हिम्मत करके वो पेड़ हटाने की कोशिश करता है। उसकी छोटी सी हिम्मत को देखते हुए और भी बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं उसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए। फिर बच्चों को देखते हुए बड़ों को खुद आना पड़ता है कि बच्चे कोशिश कर रहे हैं, चलो हम भी सब मिलकर इस पेड़ को हटा देते हैं। दूसरों की तरफ क्यों देखते रहे, लेट अस स्टार्ट। हम ही चेंज को इनिशिएट कर सकते हैं। तो वॉलंटियर कैसे करते हैं, तो बच्चों में हम ये फीलिंग्स, ये जो क्वालिटीज है वो फोस्टर करेंगे। नेक्स्ट है, हाउ कैन दीज ट्रेड्स बी यूज बाय चिल्ड्रन फॉर देयर ओन एंड देयर कम्युनिटी बेनिफिट। वो हमने अभी डिस्कस किया किस तरीके से वो कर सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। कैन देयर बी एनी नेगेटिव इफेक्ट्स अबाउट दीज ट्रेड्स, इफ यस हाउ दिस कैन बी रिड्यूस्ड। इससे नेगेटिव क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? कई बार हो सकता है कि हम किसी नेगेटिव की चीज के लिए कोई इनिशिएटिव लेते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम कोई क्विकली बड़ा हेस्ट में हम डिसीजन ले लेते हैं, हम सोचते नहीं है वेदर दैट इज राइट और वेदर दैट इज रॉन्ग। तो जब सही गलत का नहीं पता चलता, हम किसी रॉन्ग चीज के लिए डिसीजन लेते हैं, दूसरों को हम इनिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो वो दूसरे भी हमारे पीछे आना शुरू हो जाते हैं। या एक बार हमने कोई अच्छा काम किया है तो लोगों के मन में हम एक रोल मॉडल सेट हो जाते हैं, उसके बाद लगता है कि हम सब सही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा कुछ गलत कदम भी होता है तो कुछ बच्चे, कुछ लोग हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में वो हमसे ऐसे इंस्पायर हो जाते हैं, वो हमें ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स जो है आपको बच्चों से ही खुद पूछना है कि वो क्या सोचते हैं। तो इट शुड बी अ काइंड ऑफ गाइडेड डिस्कशन, जिसमें आप एक थिंक पेयर शेयर एक्टिविटी के थ्रू ये एक्टिविटी कंडक्ट करा सकते हैं, फोर कॉर्नर्स में बिठा के कर सकते हैं, या एनी काइंड ऑफ आप बच्चों को कुछ भी एक्टिविटी करा सकते हैं कि जिसमें एक पेयर में बच्चे बैठे हैं, स्टेशन रोटेशन एक्टिविटी करा सकते हैं, एनी काइंड ऑफ डिस्कशन मेथड यू कैन फॉलो। सीबीएसई ने हमें बोला है वी कैन ब्रिंग सम चेंजेस ऑल्सो इन दैट एज पर आवर स्टूडेंट्स, एज डिफरेंट डिफरेंट मेथडोलॉजीज हम उसमें यूज कर सकते हैं, बट इन केस स्टडीज को बेस बनाकर हम ये एक्टिविटीज कंडक्ट कराएंगे। तो और कौन सी केस स्टडी है इसमें? आयुष एंड हिज एक्सपेरिमेंट। आयुष इज नॉट 15 years old yet. He is very good at sports and adventure activities. He's keen on trying out new things. He recently saw an advertisement on television that showed a boy performing high jump on a motorbike. Ayush was thrilled to see this and decided to imitate the same. Fortunately, one of his relatives overheard Ayush's plan and forcefully stopped him. Now, इस केस स्टडी के बेस क्वेश्चन कौन से हैं? व्हाई डिड आयुष डिसाइड टू टेक द प्लंज? क्यों किया उसने? बच्चों से पूछिए, बिकॉज दे विल बी एबल टू एम्फेथाइज। हम इससे बार बार उनको एम्फेथाइज करने के लिए मोटिवेट करें। व्हाट वुड यू कॉल दिस ट्रेट दैट आयुष हैज? दूसरों को देखकर बहुत जल्दी या तो इमिटेट करना, या देखना कि हाँ, खुद को चैलेंज करना कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। दूसरों को शो करने के लिए, या अपनी किसी जो से ऐसे इंस्टिंक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए कि यस आई कैन डू, आई एम द बेस्ट। मतलब कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। व्हाट कुड हैव बीन प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस एक्ट? अगर वो ऐसा करता तो उसके कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? बच्चों से रूट कॉज एनालिसिस आप करा सकते हैं। इसका रूट कॉज क्या है? व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? इज इट कॉमन
at this age to get influenced by what is seen in the media. मीडिया में बच्चे जो देखते हैं, एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, टेलीविजन्स में जो मूवीज आती हैं, उनमें जो कुछ भी वो देखते हैं, क्या इस एज में बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं? यस और नो? अगर होता है तो कैसे होता है, उसको हम कैसे समझदारी से काम ले सकते हैं? यू कैन टॉक अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स विद योर स्टूडेंट्स. नाउ next is Rebti feels caged. Rebti is a 13 years old girl. She studies in government girls senior secondary school. She lives with her parent. Rebti's mother often tells her not to talk for very long on the phone, to spend more time studying rather than watching TV. Rebti feels that her mother treats her like a small child and doesn't respect her ability to take good decisions. Rebti feels वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड एंग्री. कितनी बार होता है ये आप लोगों के साथ? घरों में, क्लासरूम में बच्चों को कुछ एडवाइस करते हैं, टीनेजर्स बात सुनते नहीं. दे थिंक कि हम अपना डिसीजन ले रहे हैं, शायद हमारे पेरेंट्स, शायद हमारे टीचर्स समझते नहीं उस चीज को. देयर इज जनरेशन गैप, वो उसकी बात करना शुरू कर देते हैं. तो उसके लिए ये केस स्टडी देकर आपको कैसे क्वेश्चंस उनसे डिस्कस करने हैं. इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रेवती एंड हर मदर अ कॉमन अकरेंस? हर घर में होता है, मैंने अभी आपको भी बताया. इफ यस, what are the reasons for this conflicts between parents and children? ताली दोनों हाथों से बजती है. It takes two to tango, right? So शायद पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि आजकल के बच्चे जो हैं उनका उनका अवेयरनेस कितना है, उनको कितना एक्सपोजर है बाकी सब चीजों का, और वो हम उनको उसी तरीके से शायद कहीं ना कहीं हर चीज पर ट्रीट करते हैं. या बच्चे सोचते हैं कि हम ज्यादा एडवांस है, हमें पेरेंट्स से कुछ ज्यादा आता है, शायद ये पेरेंट्स हमारे आउटडेटेड हैं, जनरेशन गैप है. क्या उसके रीजंस हो सकते हैं? टॉक अबाउट दैट. बच्चों को एम्फेथाइज करें, करने का मौका देंगे. What can Rebati and her mother do to resolve this conflict? इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आती हैं, वो भी पढ़कर उसके बारे में भी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं. सबसे पहले तो एक फ्री डिस्कशन होना चाहिए, राइट? तो क्या वो फ्रीली अपने अपने थॉट्स कन्वे कर पाते हैं? और उस चीज के लिए दे कैन इवन टेक द हेल्प ऑफ एन एल्डरली पर्सन इन द फैमिली, अ काउंसलर इज वेल. और एक बच्चे का फ्रेंड भी होना चाहिए, राइट? हमेशा ये ना हो कि हाँ ये एल्डरली मेंबर है तो मेरे पेरेंट की साइड लेगा ये, बिकॉज वो मेरी एज का नहीं है तो शायद मेरी साइड नहीं ले. तो इस तरीके से आई मीन बच्चों से ही पूछेंगे कि वो कौन कौन से उनके व्यूज हैं, कैसे वो आगे आना चाहते हैं, राइट? तो इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं. सो अनदर इज चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस. एडोलेसेंस में बहुत सारी चेंजेस होती हैं, फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी. साइंस में बच्चों को पढ़ाते हैं इम्प्रूव्ड ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, ईगरनेस टू एक्सपेरिमेंट एंड लर्न न्यू थिंग्स. बच्चे हमेशा कुछ नया नया ट्राई करना चाहते हैं. साइकिल चला लिया, साइकिल आता है, मुझे स्कूटर चलाना सीखना है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे कार ड्राइव करना सीखना है, अब हर वक्त आप मेरे साथ मत चलो, मुझे अकेले भी जाना है. हम नई नई चीजों का एक्सपेरिमेंट वो बच्चे करना चाहते हैं, जो पहले नहीं किया मैं ट्राई करके देखूं. ठीक है, हमारी एब्सेंस में भी वो ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि वो दे फील फ्री कि अभी उनका कोई उनको सुपरवाइज करने के लिए नहीं है, तो वो ट्राई करना चाहते हैं. तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए उस चीज के लिए. इंक्रीज अटेंशन टुवर्ड्स ओन अपीयरेंस एंड लुक्स. बच्चों को देखा कितनी कितनी बार वो शीशे में देखते रहते हैं, खुद को निहारते रहते हैं, वो लुक्स के लिए बहुत कंसर्न्ड होते हैं. हार्मोनल चेंजेस आती हैं, चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो हमेशा उसके लिए बहुत कंसर्न रहते हैं कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ या मैं नहीं दिख रही हूँ. तो ये सब चीजें के साथ आपको फ्रीली डिस्कस करना है. ट्राइंग टू बिल्ड इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एंड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट बाय पेरेंट्स, अदर एडल्ट्स एंड पीयर्स. बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, पेशेंस लेवल नहीं होता है. अगर कोई किसी बात के लिए आप जब ना करोगे ना, वो तो उनको एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है. वो चाहते हैं कि हर कोई हमारी रिस्पेक्ट करे, कोई हमें डांटे नहीं. किसी के सामने अगर कुछ कह दिया तो व्हाई यू हैव टॉक्ड लाइक दैट. तो ये सब चीजों का हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक, इसलिए पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों की काउंसलिंग जो है वो बहुत जरूरी है. डिजायर टू मेक न्यू फ्रेंड्स एंड टू सोशलाइज. सोशल सर्कल बढ़ाना चाहते हैं. एक छोटा बच्चा जिसके लिए माँ ही उसकी फेरी है, पापा ही उसके रोल मॉडल है, पापा ही उसके लिए सब कुछ है, वो बच्चों के लिए
वो जब वो बड़े हो जाते हैं, वो अपने आप को सोशलाइज करना चाहते हैं, टीन एज में अपना दायरा, अपना सर्कल वो बढ़ाना चाहते हैं। इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर्स, अपने पीयर ग्रुप से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए हमें उनका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं ड्रग्स, टोबैको, वो सब चीजें वो शुरू ना कर दें लेना, हमें बहुत उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनको गाइड करना पड़ता है। कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस के बारे में बात करें, उनसे डिस्कस करें कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। गुड कंपनी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक टू देम, राइट, इससे के बारे में बात करना होगा। एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक with increased spirit of fun and adventure, राइट, यू कैन सी उनमें इतने एंथुजियास्टिक होते हैं, एडवेंचर्स करना चाहते हैं, हमें एडवेंचर लैंड जाना है, मैं ये करके देखूं, जैसा अभी हमने केस स्टडी में पढ़ा कि वो स्टंट करना चाहता है या कुछ है, बिकॉज उसको लगता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मूड स्विंग्स हो जाते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, frequent changes, you can see, and emotions like anger, love, feeling towards friends, impulsive behavior. सी मूड स्विंग्स इतने होते हैं, एक ही पल में बच्चा आपसे झगड़ा कर रहा होता है, अगले ही पल में थोड़ी देर पे द चाइल्ड इवन रियलाइजेस कि बच्चे ने गलती करी है, राइट। सो बीइंग अ मदर, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई कैन फील दैट, राइट। सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा होता है, और उस चीज के लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बहुत बार हम भी अपने बच्चों के साथ ही जब वो ऐसा करते हैं, हम भी बहुत बार इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट, डिस्कशन की रिक्वायरमेंट, फ्री डिस्कशन की रिक्वायरमेंट सबको है, पेरेंट्स को भी है, एडोलेसेंस बच्चों को भी है। डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशंस फॉर फ्यूचर, इंक्रीज्ड कंसर्न अबाउट करियर, करियर ओरिएंटेड होते हैं बच्चे। मैंने अपने बच्चों को देखा है, कीप ऑन एक्सप्लोरिंग कि मेरे इस सब्जेक्ट के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, मैं कहाँ जा सकता हूँ, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे जाके अगर मैं पढ़ूँ तो मेरा करियर अच्छा बनेगा, व्हाट ऑल ऑप्शंस कैन बी देयर। बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं। अगर इस टाइम पर उनकी हम एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलता है, दे कैन डू वंडर्स, दे कैन डू वंडर्स। सो बिगिन टेकिंग डिसीजंस अबाउट सेल्फ, डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ यहाँ पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे आपके यहाँ पर जाना है, आई डोंट फील गुड। डिसीजन लेना चाहते हैं अपने, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे वो कहीं जाने के लिए हो। मैं अपने इन सब्जेक्ट्स को अगर मैं ऑप्ट करता हूँ, मैं करती हूँ, इसके साथ ये सारे कॉम्बिनेशन हैं, लेट मी गो हेड विद दैट। तो इट्स अ काइंड ऑफ स्टूडेंट वॉइस एंड चॉइस, राइट। बच्चों को एक मौका दें, उनकी बात सुने, पर साथ के साथ उनको गाइड भी करना है कि क्या सही है, क्या गलत है। नीड फॉर एस्पिरेशन एंड रिकॉग्निशन, एस्पायर होते हैं छोटी छोटी चीजों कुछ करना चाहते हैं, और अपनी रिकॉग्निशन, एक उनको लगता है कि मुझे रिकॉग्नाइज करे कोई, कि अगर मैंने ये कुछ काम किया है तो आई शुड गेट ड्यू रिकॉग्निशन फॉर दैट। So these are the some of the changes that are observed during adolescence. So summary of discussions: change is the hallmark of adolescence. We have already discussed, like change is the only constant. Change occurs in the body, in the way they feel, they think, which in turn impacts their behavior. Adolescence is phase in life which when individuals they develop unique identity, independent thoughts, relationships, interests, and opinions which are vital to the process of growing up. Adolescence is a time for exploration and fun, new hopes, and excitement. Adolescence is also a time to know oneself and learn to better manage one's emotions and behavior. Adolescence. I have already discussed all those things. This was just a summary about that. So, for that, it's physical activity changes during adolescence. This we will discuss in the upcoming video. I will be sharing with you bite-sized videos for each and every topic. Different videos I will be sharing with you so that you can watch them at your own pace. I will be bilingual ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझ में आए। अपना काम करते करते इसको चलाकर इस ऑडियो फॉर्म में भी आप सुन सकते हैं. So that's up to you. Keep watching Mentoring the Mentors, right? And do share your suggestions in the comment section below. Like it, share it in the teachers community so that as many teachers as you can, you will be able to share with them. They should be aware about health and wellness program. Thank you. Bye-bye from Meenakshi Nerula.